کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا روٹی سستی کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کی طرف سے روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کر دی گئی۔ ملتان کے شہری کہتے ہیں کہ 15 روپے میں ملنے والی روٹی کو 1 روپیہ مزید مہنگا کر دیا، کوئی ریلیف نہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں شکیل سلطان کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا روٹی سستی کرنے کا اعلان۔ روٹی کی نئی قیمت 16 روپے مقرر کر دی گئی۔ ملتان کے شہریوں نے مریم نواز کے اس اعلان کو مذاق قرار دیتے ہوئے آڑے ہاتھوں لیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تندور پر روٹی پہلے ہی 15 روپے کی مل رہی ہے، اب تو 1 روپے مزید مہنگی کی گئی ہے۔ یہ ریلیف نہیں، غریب کے ساتھ مذاق ہے۔ اقتدار میں آتے ہی جو چیزیں مہنگی کی ان کی قیمت کم کی جائے۔ پہلے 15 سے 20 روپے میں روٹی مل رہی تھی، تقریباً 100 روٹی ویٹ کے حساب سے ملتی ہے ادھر، 100 گرام میں، 150 گرام میں۔ 100 گرام روٹی کا وزن جو ہے وہ 15 روپے میں مل رہی تھی، 200 گرام روٹی کا 150 گرام روٹی کا وزن جو ہے وہ 20 روپے میں مل رہی تھی۔ اب یہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو کیا ہے 15 سے 16 روپے کی، 1 روپے تو اس میں بھی بڑھ گیا ہے نا۔ تندور مالکان کہتے ہیں کہ شہر میں اکثر مقامات پر گندم کی روٹی کی قیمت 15 روپے ہے، جو کہ منافع بخش ہے۔ حکومت 20 روپے میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ گندم کی قیمت کو بھی کنٹرول کیا جائے تاکہ روٹی سستی ہی ملتی رہے۔ یہ فضول ہے، یہ اس قسم کا ریلیف فضول قسم کا ہے۔ جب 15 روپے کی بیچ رہے تھے تب بھی ہمیں نفع مل ہی رہا تھا۔ یہ کیمرہ گھمائے اس طرف، خمیری روٹی 20 روپے اور سادہ روٹی 15 روپے کا ریٹ ہم نے لاگو کیا ہوا ہے۔ یہ دوسرے کاموں میں توجہ دیں، جس طرح سبزیاں، گوشت وغیرہ، یا پھر ملک کی ترقی کی جانب اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے پیٹرول، گیس، بجلی اور اشیاء خورنوش کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد طاہر کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ میں ڈپٹی کمشنر نے روٹی اور نان کی قیمت مقرر کر کے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ضلع کی ریونیو حدود میں 100 گرام روٹی کی قیمت 12 روپے جبکہ 120 گرام نان کی قیمت 16 روپے مقرر کر دی گئی، جبکہ نان ڈیلرز ایسوسی ایشن نے میدے کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مظفر گڑھ کی ضلع انتظامیہ نے نان اور روٹی کا ریٹ مقرر کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق روٹی کی قیمت 12 اور نان کی قیمت 16 روپے مقرر کی گئی ہے۔ دوسری طرف نان ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ہم احکامات پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے بھی کچھ اخراجات ہیں۔ نان کا ریٹ تو بظاہر 20 روپے کا تھا، سادہ نان 16 روپے کا ہم دیں گے، اور میں سب جو دوست احباب میٹنگ میں موجود نہیں تھے ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد کریں۔ نان ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ گیس کی بجائے سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جو مہنگے پڑ رہے ہیں۔ لیبر کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، حکومت اس طرف بھی کوئی توجہ دے۔ ڈی سی صاحب سے گزارش ہے جی، جیسے انہوں نے کہا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اس دکان کا اونر ہوں، عملے کا گزارش یہ ہے کہ ہمارے بھی اخراجات بڑھائے جائیں۔ آپ کی مہنگائی کی وجہ سے ہمارے مالکان ہماری تنخواہیں نہیں بڑھاتے، جن کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا تھا کہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں۔ نان ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سے بھی ملاقات کر چکے ہیں اور انہیں مکمل اعتماد میں لیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب بات کریں گے اسسٹنٹ کمشنر راجن پور محمد عامر جلبانی کی کارروائیاں۔ روٹی اور نان کا کم وزن، 3 ہوٹل مالکان کو 1,35,000 روپے جرمانہ کر دیا گیا۔ ہوٹل مالکان نے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی۔ ہوٹل پر صفائی ستھرائی اور کھانے کے معیاری انتظامات نہ تھے، جس کی وجہ سے ان کو جرمانہ عائد کیا گیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر راجن پور محمد عامر جلبانی کی کارروائیاں۔ روٹی اور نان کا کم وزن، جس کی وجہ سے 3 ہوٹل مالکان کو 1,35,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ہوٹل مالکان نے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کی اور ہوٹل پر صفائی ستھرائی اور کھانے کے معیاری انتظامات موجود نہیں تھے، جس کی وجہ سے ان کو جرمانہ کیا گیا۔ اور اب بات کریں گے 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات کا معاملہ۔ جنوبی پنجاب میں 3 صوبائی حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ ڈی جی خان میں پی پی 290 میں میدان سجے گا، رحیم یار خان میں پی پی 266 میں میدان سجے گا، بھکر پی پی 93 میں انتخابی میدان لگے گا، اور ملتان این اے 148 میں میدان 19 مئی کو سجے گا۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، 21 اپریل کو ہونے والے ضمنی انتخابات کا یہ معاملہ ہے۔ اس میں مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے زہیب بخاری سے۔ جی سید زہیب بخاری، بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ آج بالکل عام انتخابات کے بعد یہ نشستیں جو ہے وہ خالی ہو چکی تھیں، اور اس سلسلے میں اب یہ ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں 21 اپریل کو جو ضمنی انتخابات ہونے اس حوالے سے
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और सिलसिले में अगर हम पंजाब की सबसे पहले बात करें तो पंजाब के 12 सूबाई और 2 कौमी असम्बली हल्कों में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तो दूसरी जानिब जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब के 3 सूबाई हल्कों में जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो 21 अप्रैल को जो है वो होंगे, जिनमें से अगर हम बात करें डीजी खान तो डीजी खान का सूबाई हल्का पीपी 290 और रहीम यार खान का पीपी 266 और बकर में पीपी 93 में इंतखाबी मैदान जो है वो सजेगा। जबकि अगर हम कौमी असम्बली की बात करें तो 21 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में कौमी असम्बली के किसी भी नशिस्त पर जो है वो इलेक्शन नहीं होगा, जहां 19 मई को जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जो नशिस्त जो खाली हुई थी उस पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो शेड्यूल है जारी किया गया था उसके मुताबिक कौमी असम्बली का जो वाहिद इंतखाबात होगा वो 19 मई को उसका मेला जो है वो सजेगा। तो साथ ही हम रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद की बात कर लें तो पंजाब के 14 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो 14 हल्कों में 40,41,552 रजिस्टर्ड वोट जो है वो वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। रजिस्टर्ड वोटर्स में 21,77,187 मर्द और 18,66,365 जो है वो खवातीन वोटर्स हैं। और सुबह पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 663 मर्दाना, 649 जनाना और 1289 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन पे जो है वो कायम किए गए हैं। तो तमाम तर तैयारियां अपने आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं और ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में मुख्तलिफ इजलास में पोलिंग स्टाफ की तरबियत का अमल भी जो है वो शुरू हो चुका है। और जनूबी पंजाब के 3 शहरों यानी कि डीजी खान, रहीम यार खान और बकर के सूबाई हल्कों में जो इंतखाबात हैं वो 21 अप्रैल को होगा। जबकि कौमी असम्बली की जो नशिस्त है NA 148 जिसमें चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेटर मुंतखब होने के बाद उनकी खाली हुई थी उस पर इंतखाब 19 मई को मुल्तान में होगा। जी बहुत शुक्रिया सैयद ज़ोहैब बुखारी आपका। अब बात करेंगे बहावलपुर में 27 कनाल अराजी की अलॉटमेंट का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अराजी की अलॉटमेंट मनसूख की अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है। वकील अपील कुनिंदा आप यहां तकरीर ना करें, कानून की बात करें। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून को अलॉट की गई। वकील का ये मौकफ था। रियासत बहावलपुर की जमीन प्राइवेट खातून खरीद नहीं सकती, मौकफ इख्तियार किया गया। रियासत बहावलपुर की सरकारी जमीन पंजाब हुकूमत अलॉट नहीं कर सकती। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर जमीन प्राइवेट शख्स को अलॉट की। अपील इकबाल गुज्जर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। आपको अहम खबर से अपडेट करें। 27 कनाल अराजी की अलॉटमेंट का यह मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने अराजी की अलॉटमेंट मनसूखी की अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। ये करोड़ों रुपए का फ्रॉड हुआ है, वकील अपील कुनिंदा की तरफ से कहा गया। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बड़ा इकदाम। मुल्तान समेत पंजाब भर में कैपिटल वैल्यू पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जायदादों की कीमत को मद्देनजर रखकर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाएगा। ADG की जानिब से कहा गया जायदाद की कीमत का 0.07% टैक्स आयद किया जाएगा। रिजवान शेरवानी का ऐसा कहना था। इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स हर जायदाद पर मरहला वार आयद किया जाएगा। जाती इस्तेमाल की जायदाद पर सेल्फ टैक्स वसूल किया जा रहा है। कैपिटल वैल्यू को मद्देनजर रखकर 5 मरले के घरों से टैक्स वसूली की जाएगी। डायरेक्टर्स को अज़-सर-नो सर्वे करके रिपोर्ट भिजवाने का मरासला भिजवा दिया गया है। आपको अहम खबर से अपडेट करें। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से बड़ा इकदाम। मुल्तान समेत पंजाब भर में कैपिटल वैल्यू पर टैक्स वसूल किया जाएगा। जायदादों की कीमत को मद्देनजर रखकर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जाएगा। जायदाद की कीमत का 0.07% टैक्स आयद किया जाएगा। मुल्तान में गुलशन मार्केट जेड ब्लॉक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क पर हादसात होना मामूल बन गया। सड़क टूटी फूटी होने के बायस दुकानदारों का कारोबार भी शदीद मुतासिर होने लगा। मुल्तान में गुलशन मार्केट जेड ब्लॉक रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार। खस्ता हालत सड़क पर हादसात होना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं कि रात के औकात में यहाँ पर घरों से नहीं निकल सकते। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया जी। ये इलाके की ये जितनी सड़कें हैं ये टूटी हुई हैं। यहाँ सीवरेज लाइन बिछाई गई थी आज से 1.5 साल पहले और उसके बाद ठेकेदार गायब है। और इसके लिए मैंने दरखास्तें दी MD वासा को कि जी ये इसका मुरम्मत कराई जाए, ट्रंच मुरम्मत कराई जाए, ये मट्टी उठाई जाए, नीचे
रोड क्लियर है, साफ है, उसको साफ किया जाए और इसकी मुरम्मत करें ताकि लोग आसानी से गुजर सकें। सड़क की खस्ता हालत के बाइस दुकानदारों का कारोबार शदीद मुतासिर होने लगा। दुकानदारों का कहना था कि हम यहाँ से अपनी दुकानें छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। गाहक यहाँ नहीं आते, पूरा दिन हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहते हैं। सर यहाँ पे बहुत परेशानी है, ना सिविल लाइन बिछाई गई है, ना कुछ किया हुआ है, बहुत परेशानी और चोरी डकैती के वारदात यहाँ पे बहुत हो रही है। हम तंग आ गए इस चीज से, जो भी आता है लूट पुट करके चला जाता है, कोई अमल बरामद करता ही नहीं है यहाँ पे। तो शहरियों और दुकानदारों ने इंतजामिया से सड़क की जल्द अज जल्द तमीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। पिपला पीएफए की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 1 मन जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। 91,000 रुपए जुर्माना। टीम ने पिपला, कुंदिया और दीगर इलाकों में फूड पॉइंट्स को चेक किया। दूध बरदार गाड़ियों पर लोड 34,080 लीटर दूध भी चेक किया गया। गैर मियारी खाने की अशिया, मसाला जात, केमिकल्स, ममनू पाउडर भी तलब कर दिया गया। आपको अपडेट करें, पिपला से पीएफए के सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 मन जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तलब कर दी गई। 91,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। टीम ने पिपला, कुंदिया और दीगर इलाकों में फूड पॉइंट्स को चेक किया। दूध बरदार गाड़ियों पर लोड 34,080 लीटर दूध भी चेक किया गया। गैर मियारी खाने की अशिया, मसाला जात, केमिकल्स, ममनुआ पाउडर भी तलब कर दिया गया। आपको बता रहे हैं, पिपला से पीएफए की सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 1 मन जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी तलब कर दी गई और 91,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। मुल्तान थाना राजा राम में तैनात सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की रिटायरमेंट के मौका पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तजा, एसएचओ थाना सदर सिटी की शिरकत। डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खेड़ा की खिदमात को सराहा। डीएसपी ने सब इंस्पेक्टर को हार पहनाए और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर को महकमाना एजाज के साथ घर तक छोड़ा गया। पुलिस के मुताबिक थाना राजा राम में तैनात सब इंस्पेक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की रिटायरमेंट के मौका पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीएसपी शुजाबाद गुलाम मुर्तजा, एसएचओ थाना सदर सिटी की भी शिरकत। मुल्तान में महकमे स्पेशल एजुकेशन का ऐसा इक़दाम, कुव्वत समात और गोइयाई से महरूम बच्चों के स्कूल में ऑडियो मीटर रूम बना दिया गया है, जिसकी मदद से बच्चों को हेयरिंग कट फ्राहम किया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। मुल्तान में महकमा स्पेशल एजुकेशन का अहम इक़दाम, कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों के स्कूल में ऑडियो मीटर रूम बना दिया गया। ऑडियो मीटर रूम में कुव्वत समात और गोयाई से महरूम बच्चों का ऑडियो लेवल चेक किया जाएगा, जिसके बाद इन बच्चों को आलात फराहम किए जाएंगे, जिसकी मदद से इन्हें सुनने में आसानी होगी। स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चों का ऑडियो लेवल हर माह चेक किया जाएगा। रूम तैयार गया है, इसमें ये होता है कि बच्चों की असेसमेंट की जाती है। हमारे पास जो बच्चा आता है उनकी हेयरिंग लेवल चेक किया जाता है कि वो किस हेयरिंग लेवल पे, वो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, मॉडरेट है, प्रोफाउंड है। उस लेवल पे फिर उनका लेवल चेक करके उनको हम हेयरिंग एड मुहैया करते हैं और उसी से ही उनकी लर्निंग प्रोसेस में मदद मिलती है। ऑडियो एक्सपर्ट असाज़ा का कहना था कि हमारे पास 4 ऑडियो मीटर मशीन्स मौजूद हैं, जिसके जरिए ऑडियो चेक होता है। हर माह बच्चों की ट्रेनिंग के बाद दोबारा ऑडियो चेक की जाएगी। इन बच्चों को समी आलात की फराहमी के लिए ऑडियो चेक करना जरूरी है। जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उसकी हेयरिंग लॉस की असेसमेंट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑडियो मीटर की फैसिलिटी मिलती है और ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तमाम सहूलियत मुयसर की जाती हैं ताकि स्पेशल बच्चा जो समाज से महरूम है वो एजुकेशन हासिल करे, ट्रेनिंग हासिल करे और उसी बुनियाद पर हम उसकी हेयरिंग असेसमेंट करते हैं। स्कूल प्रिंसिपल मियां मोहम्मद माजिद का कहना था कि ऑडियो रूम स्पेशल बच्चों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। हम इनकी हेयरिंग बेहतर करने के लिए हर माह चेक करते हैं ताकि इसके मुताबिक जदीद आलात फराहम कर सकें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलिशा आसिफ, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान ज़िले इंतजामिया जेल असीरान को तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। जेल में अस्पताल के बेड्स की तादाद बढ़ाई जा रही है। अस्पताल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी तैनात किए जा रहे हैं। रहीम यार खान ज़िले इंतजामिया
कैदियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज ने डिस्ट्रिक्ट जेल के असीरान को इलाज में दरपेश मसाइल हल करने के लिए खुसूसी हदायत जारी कर दी। जेल में मौजूद 10 बेड्स के अस्पताल को बढ़ाया जा रहा है। जेल अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी के बायस कैदियों को इलाज में मसाइल का सामना था, इसलिए डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को जेल अस्पताल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर तैनात करने की हदायत दी है। जेल असीरान की जहनी सेहत के लिए साइकाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। जेल के अंदर हम सेहत की इस्लाहत कर रहे हैं। अभी 10 बेडेड हॉस्पिटल अपग्रेड कर रहे हैं, उसमें जो स्पेशलिस्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारा शेखज़द हॉस्पिटल है, उसमें अलग से हम एक मुख्तस कर रहे हैं जगह जहाँ पे जो इनमेट्स हैं, जेल इनमेट्स, उनके अगर इलाज करना हो तो उधर आ सकें। दवाइयों का इंतज़ाम प्रॉपरली कर रहे हैं। इसके अलावा साइकेट्रिस्ट का भी हमने इंतज़ाम किया है वहाँ पे, ताकि उनके साइकोलॉजिकल भी ट्रेनिंग हो सके और साइकेट्री के जो मसाइल हैं जो कि बहुत मेजर इशू है जेलों में, वो भी हल हो सके। जी, जेल असीरान के इस इलाज के लिए शेखज़द अस्पताल से भी मावनत हासिल की जाएगी। शेखज़द अस्पताल में कैदियों के इलाज के लिए अलहदा से ब्लॉक कायम किया जाएगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में बारिश और तेज आंधी, हालिया मौसमी सूरत हाल से गंदम की फसल महफूज। मुल्तान में 65,000 एकड़ रकबे से गंदम की कटाई हो चुकी है। इस हवाले से तफसीलात के लिए देखते हैं अली रियाज की रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में तेज बारिश और आंधी का राज। गुज़श्ता दिनों बारिश और आंधी से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन महकमा ज़राअत के मुताबिक मुल्तान जिला में हालिया मौसमी शिद्दत से गंदम की फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जिला मुल्तान में 4,63,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश की गई थी। हालिया मौसमी सूरत हाल की वजह से 95 एकड़ गंदम की फसल मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तोसीम मुल्तान के मुताबिक अब तक 65,000 एकड़ रकबे से गंदम की कटाई हो चुकी है। हार्वेस्ट हो चुकी है तकरीबन 15%, 65,000 एकड़ जो है पूरे टारगेट की ये हार्वेस्ट भी हो चुकी है। और ये जो बारिशें हुई हैं कोई 2 दिन पहले और कुछ पिछले हफ्ते हुई हैं, उनका कोई मुज़र असरात नहीं देखने में आए गंदम की फसल पर। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसीम मुल्तान डॉक्टर अजवर रजा का कहना था कि गंदम की फसल में दाने मुकम्मल तौर पर पक चुके हैं, इसलिए बारिश से नुकसान नहीं हुआ। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में काश्तकार मौसम की पेशगोई के बाद ही कटाई करें। 95 एकड़ पूरे ज़िले में जो है थोड़ी सी अफेक्ट हुई है, वो भी ना होने के बराबर उस पर बुरा असरात पड़ा है जालाबारी का। बाकी फसल बिल्कुल सेफ है। माहिरीन के मुताबिक काश्तकार आइंदा दिनों में मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए इकदाम करें। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। गर्मियां आते ही मौसम की बेहतरीन सौगात तरबूज मार्केट में आ गया, जो जायके और मिठास में अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रुझान से असलम सागर की रिपोर्ट में। रुझान में मौसम गर्मा की बेहतरीन सौगात तरबूज मार्केट में आ गया। अफादियत से भरपूर तरबूज छोटे बड़े सभी शौक से खाते हैं। तरबूज जायके और मिठास में अपनी मिसाल आप है। तरबूज एक तो फल मीठा फल है और दिल को तस्कीन भी देता है, इसे हम बड़े शौक से खाते हैं। गर्मियों का तोहफा भी है और हम भी खाते हैं और साथ में तरबूज यहाँ से लेकर जाते हैं और बच्चों को भी खिलाते हैं। बच्चे भी इनको बड़े शौक से खाते हैं। जरा तरबूज असां को सरेकी दे विच हिंदवाना भी आदूं और गर्मियों वास्ते बेहतरीन मेवा भी है ते और गर्मियों वास्ते बेहतरीन असां आप ही खमदे रहंदूं, अपने बच्चे वास्ते भी नहीं दे रहंदूं। तरबूज खाने में लजीज होने के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई मुफीद है, जो निज़ाम हाज़म को बेहतर बनाता है, साथ ही गर्मी की शिद्दत को भी कम करता है। कैमरामैन इजाज कमल के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। रोही के करिया करिया नगर नगर प्रोग्राम में आज हम जिक्र करने जा रहे हैं विहाड़ी का। इस इलाके की बहुत बड़ी तारीख है और इसका नाम विहाड़ी क्यों रखा गया, इस हवाले से जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। विहाड़ी का लफ्ज विहा से निकला, जिसके लफ्जी मानी रवां पानी के हैं। करीन कयास ये है कि सूखे हुए दरिया ब्यास को पंजाब के लोगों ने विहास कहा और फिर वक्त के साथ साथ विहा से विहाड़ी हो गया। जिला विहाड़ी दरिया ब्यास और सतलुज के दरमियान वाक़या है। इस खित्ते को दरिया सतलुज के नीले पानी की वजह से नीली बार भी कहा जाता है, मगर अब न वो पानी रहा और न ही पानी का नीला रंग। विहाड़ी को 1 अप्रैल 1976 को जिले का दर्जा दिया गया। इसमें 3 तहसीलें विहाड़ी, बोरेवाला और मेलसी शामिल हैं। विहाड़ी की कुल आबादी 34,30,421 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका कुल रकबा 4,364 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 105 यूनियन काउंसिल्स और 774 देहात हैं। विहाड़ी की आम जातें जाट, ढड्डी राजपूत, जोया राजपूत, शेख, भट्टी राजपूत, बलोच, खोखर, डाहा, गुज्जर, अराई, सियाल, अवान और लंगड़ियाल हैं। विहाड़ी की सकाफत लाहौर से मिलती जुलती है। यहाँ के लोगों का आम लिबास शलवार कमीज है। सकाफत में पंजाब का
रंग नुमाया है। लोग आमतौर पर पंजाबी खाने ही पसंद करते हैं। विहाड़ी को सिटी ऑफ कॉटन भी कहा जाता है। विहाड़ी की तारीखी इमारतों में सनातन धर्म मंदिर शामिल है। इसकी तामीर क़याम पाकिस्तान से पहले 1940 में शुरू हुई। हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की तहरीक ने जोर पकड़ा तो मंदिर की तामीर रुक गई। 1992 में हिंदुस्तान में हिंदू इंतहा पसंदों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया तो विहाड़ी में भी एहतजाजी जुलूस निकाला गया और अवाम ने मुश्तइल होकर इस मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर की जगह अब ट्रस्ट प्लाजा बना दिया गया है। अब सिर्फ मंदिर का एक मीनार बाकी है। विहाड़ी से 22 किलोमीटर के फासले पर हजरत मियां पक्की का मज़ार वाक़या है। विहाड़ी में यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर यूनिवर्सिटी मर्दों और औरतों के लिए 2 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। कॉमसिटिस यूनिवर्सिटी कैंपस 2009 से MS और BS प्रोग्राम पेश कर रहा है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैंपस 2001 से काम कर रहे हैं। विहाड़ी कैंपस एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है जिसे वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से फंड किया जाता है। विहाड़ी में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़िली कैंपस भी हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। विहाड़ी की तारीख आपने जानी, अब बात करें कोट छट्टा की। इस इलाके की तारीख भी बहुत पुरानी है। इसकी तारीख को जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोट छुट्टा तारीख के आईने में डेरा गाजी खान से 17 किलोमीटर जनूब की जानिब वाक़े कदीमी शहर कोट छुट्टा तारीखी अहमियत का हामिल है। कोट छुट्टा को 350 साल पहले छुट्टा खान गुरमानी ने आबाद किया। इसी के नाम पर इस शहर का नाम कोट छुट्टा रखा गया। पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान से राजपूत बिरादरी कसीर तादाद में यहाँ आकर आबाद हुई। कोट छुट्टा पहले देहात से कस्बा और फिर शहर बन गया। कोट छुट्टा दरियाए सिंध और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में वाक़े है। कोट छुट्टा को 1961 में यूनियन कौंसिल, इसके बाद 2012 में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कोट छुट्टा को तहसील का दर्जा दिया। छोटी जेरी, माना आमदानी, झोकुतरा, सखी सरवर समेत कोट छुट्टा की कुल 30 यूनियन कौंसिल है। मरदमशुमारी 2023 के मुताबिक कोट छुट्टा की कुल आबादी 9,13,000 है। 2023 की नई हल्का बंदियों के तहत तहसील कोट छुट्टा को 3 कौमी असम्बली हल्का NA 184, 185 और 186 जबकि 4 सूबाई हल्के PP 287, 289, 290 और 291 में शामिल किया गया है। सेहत की सहूलियात के हवाले से यहाँ 1 तहसील हेडक्वार्टर, 1 सिविल अस्पताल, 3 RHC और 14 बुनियादी सेहत मराकज हैं। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सेहत के हवाले से बेहतरीन पॉलिसियों के बायस ट्रामा सेंटर में एमरजेंसी की सर्विसेज शुरू होने जा रही हैं। साबिक MPA सरदार महमूद कादर खान लिगारी की काविशों से अक्टूबर 2016 में रेस्क्यू सेंटर का क्याम भी अमल में लाया गया था। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर डॉक्टर हसनैन रजा की निगरानी में अवामी खिदमत के तहत रेस्क्यू सर्विसेज बाकायदगी से सहूलियात फराहम कर रही है। कोट छुट्टा में 324 प्राइमरी स्कूल, 32 मिडिल स्कूल, 5 हायर सेकेंडरी स्कूल और 3 गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेज कायम है। स्पेशल बच्चों के लिए भी 1 मिडिल स्कूल बनाया गया है। जराइम को कंट्रोल करने के लिए DSP सर्कल समेत 4 पुलिस स्टेशन, थाना कोट छुट्टा, थाना चोटी ज़ेरी, थाना झोकुतरा और थाना दरखास्त जमाल खान कायम है। थाना कोट छुट्टा 1946 में बनाया गया था, जो क़याम पाकिस्तान के बाद हदूद अरबा के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा थाना था, जिसे जराइम की शरह के मुताबिक 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। कोट छुट्टा 4,36,430 एकड़ पर मुहित है। यहाँ की ज्यादातर आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, इसलिए यहाँ का 2,47,646 एकड़ रकबा ज़राअत पर मुश्तमिल है, जहाँ मौसम के एतबार से ज्यादातर गंदम, चावल और कपास की फसल काश्त की जाती है। यहाँ अगर सड़कों की बात की जाए तो मियां शहबाज शरीफ के पक्कियां सड़का सोखे पेंडे प्रोग्राम के तहत कुछ सड़कें तो बना दी गई थीं, लेकिन अक्सर आज भी खस्ता हाली का शिकार हैं। शहर को देहातों से मिलाने वाली सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं, जिनकी आज तक मुरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की लापरवाही के बायस 2006 में बनने वाली कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार है, जहां पर बेहंगम ट्रैफिक और सड़क की खस्ता हाली के बायस आए रोज हादसात में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। अब्दुल हकीम के बड़े मसाइल में अब्दुल हकीम रेलवे अंडरपास का न होना, अब्दुल हकीम तहसील का ना बनना, स्कूलों और अस्पतालों की अपग्रेडेशन ना होना शामिल है। इसके साथ साथ सड़कों की खस्ता हाली भी अब्दुल हकीम के शहरियों का बड़ा मसला है। अगर हुकूमत वक्त
عبدالحکیم کو ان مسائل پر ریلیف فراہم کرتی ہے تو شہریوں کے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہوگی۔ کیمرہ مین طلحہ راجپوت کے ساتھ آصف خان نیازی، روہی ٹی وی، عبدالحکیم۔ اب بات کریں گے پپلا کے علاقے کندیا میں 103 سالہ تاریخی مسجد یا رسول اللہ فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے مریم نامی خاتون نے مکان اور باقی خواتین نے زیورات اور جہیز وقف کیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کی مسجد یا رسول اللہ کا شمار قدیم مساجد میں ہوتا ہے۔ مسجد کا نقشہ مرحوم بشارت علی چیف انجینئر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے تیار کیا۔ اس مسجد کے 6 خوبصورت مینار اور 5 گنبد ہیں۔ معروف کیلی گرافر نوید احمد بھٹی کی زیر نگرانی کیا گیا کیلی گرافی کا کام اپنی مثال آپ ہے۔ مسجد کے در و دیوار کو خط سلس اور خط کوفی سے لکھی گئی قرآنی آیات سے مزین کیا گیا ہے۔ مسجد میں بیک وقت تقریباً 500 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد 1920 میں ہمارے آبا و اجداد جو کہ ہم نے نام پڑھا ہے گھیبا وٹو، انہوں نے بنیاد رکھی اور 2000 میں اس کو 1 صدی مکمل ہو گئی۔ اثر نو اس کی تعمیر شروع ہوئی جس میں اہل محلہ نے بھرپور انداز میں ڈونیشن کی۔ محلہ کی 25 سے 30 عورتوں نے اپنا جہیز قربان کیا۔ مسجد یا رسول اللہ کی تعمیر میں اہل محلہ نے دل کھول کر عطیات دیے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے مریم نامی خاتون نے مکان اور گھر کا سارا سامان جبکہ 25 سے زائد خواتین نے اپنے زیورات اور جہیز عطیہ کیا۔ کنڈیا کے ایک تاجر نے مسجد کے لیے 50 لاکھ روپے عطیہ دیا ہے۔ اس وقت مسجد کی تعمیر پر 2 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے۔ مسجد کی تعمیر کا تخمینہ 5 سے 6 کروڑ روپے ہے۔ مسجد کا کام ابھی جاری ہے۔ اس مسجد کا جو نقش و نگار ہے وہ مسجد نبوی شریف کے ڈیزائن پر اور حرم کعبہ کی دروازہ کا جو ڈیزائن ہے وہی محراب کا ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جب یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی ذکر و عبادت کیا جاتا ہے تو حرم مکی اور حرم مدنی کی جو خاص کیفیات ہیں وہی بنتی ہیں۔ جو لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک خاص سرور اور خاص سکون اس مسجد میں آ کر ملتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے والوں کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں اور باب کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی خوبصورت تزئین اور آرائش کو دیکھنے کے لیے لوگ جوش در جوش آتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عطا اللہ شہین، روہی پپلا۔